Praise God. Hallelujah. सब बोले हालेलुया. काम बड़ा ढीला है. सब बोले हालेलुया. थोड़ा समझी बोले हालेलुया. हाथों को हिला के बोले. एक दूसरे को हिला के बोले. हिलाए तो सही ना, पता तो चले. नहीं आया बड़ी गाल है. मैंने कहा एक दूसरे को हिला के बोले हालेलुया. हिलाओ भी तो सही ना. और ऐसे मुराद ये है कि थोड़ा सा आपकी जो ये सुस्ती आज पड़ी हुई है ना, ये आपको उतर जाए. तो सुस्त लोग यीशु मसीह की बादशाही में नहीं जाएंगे, ये बात याद रखना. ओके, आइए हम अपने ईमान का इजहार करते हैं, फिर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं. मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने ईमान का इजहार करें और बड़ा संजीदा होकर खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जो होंगे. आइए सारे ईमान का इजहार करते हैं. मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा. मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर. आमीन. सब बोले आमीन. जमात तशरीफ रखे. खुदा आपको बरकत दे. हम जितने खुदा की पाक हज़ूरी में पहुंचे हैं, इस बात को बखूबी आप अपने ज़हन नशीन करें. इस बात को आप अपने दिल पे लिखें. आज तलावत भी इस बात की गई कि जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं और मुर्दे जो हैं वो खुदा की सताइश नहीं करते. कुछ तो वैसे ही इस जान पानी से कूच कर गए और कुछ जो जिस्म रखते हुए भी मुर्दा पाए जाते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है. और ये इंतहाई खतरनाक बात है कि तू कहलाता तो जिंदा है पर है तो मुर्दा. मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि ईमानदारों का, रास्तबाजों का, मसीह की कलीसिया का मसीह जिंदा है, तो फिर मसीह की कलीसिया भी जिंदा होनी चाहिए. बाज़ औक़ात हम अपने आप को जिंदा समझ रहे होते हैं, लेकिन हमारा हाल भी मुर्दों से कुछ कम नहीं होता. क्योंकि मुर्दे खुदा की सताइश नहीं कर सकते,
وہ آواز بلند نہیں کر سکتے، وہ چل نہیں سکتے، وہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، وہ پہن نہیں سکتے. اور یہ بات میں آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں، آپ کا ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ زندہ ہی زندہ خدا کے بیٹے کا استقبال کریں گے، باقی نہیں. اور مجھے اور آپ کو خدا نے اگر اب تک اس بدن میں رکھتے ہوئے اور دنیا میں رکھتے ہوئے زندگی دی ہے تو اس کے پیچھے کچھ خدا کا پرپس ہے، کچھ خدا کا مقصد ہے. اور جو بھی انسان اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے اگر وہ اس مقصد کو سمجھ ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں پایا، تو یاد رکھے بائبل مقدس کے مطابق اس کو جینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے. وہ کس کے لیے جیتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے. خدا کا بندہ پولس کہتا ہے ہم جیے یا مرے، ہم جیے یا مرے کس کے لیے؟ مسیح کے لیے، کیونکہ مسیح ہی سب کے لیے مر گیا اور اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر، خدا کا بندہ پترس لکھتا ہے کہ اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں ایک زندہ امید بخشی ہے. آمین. دنیا کے لیے تو شاید ہم جیتے ہیں، دنیا کی کاموں میں تو شاید ہم بڑے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ایسی کوئی بات نہیں کرتی. بائبل مقدس جو ہے وہ آخرت کی بات کرتی ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ آخرت کی بات کرتا ہے. بڑا وہ خوبصورت گیت ہے، ہم گاتے ہیں اکثر کہ تینوں کلیا سی نیکیاں کمانا. بڑا یہ پرانا گیت جو آج بیٹی نے گایا ہے نا، ہو یسو نال میل کرائے بندگی، ہے نا. تو بندگی تو وہی کر سکتا ہے نا جو مسیح کا بندہ ہو، جو مسیح کا بندہ بن چکا ہو، جس نے آسمانی باپ کو اپنا باپ بنا لیا ہو اور اس کے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ بنا لیا ہو اور روح القدس کو اپنا مددگار بنا لیا ہو اور اپنا آپ اس نے اس کو پیش کر دیا ہو. تو بندگی تو وہی کر سکتا ہے، سب لوگ بندگی نہیں کر سکتے. تو یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، سیکھنی ہے کہ ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے موجود ہیں. آمین. دنیاوی طور پر ہمارے مقاصد ہو سکتے ہیں، پڑھنے والی بیٹیوں کے، بیٹوں کے، پیرنٹس کے، ہمارے اپنے جذبات کے وسیلہ سے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کو ان جذبات اور ان مقاصد سے کوئی بھی فائدہ ہے؟ نو، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے خدا کی ان سارے مقاصد کا زمین پر. بائبل مقدس کہتی ہے یسایہ 43 باب اس کی 21 آیت میں، یعنی یسایہ چیپٹر 43 ورس 21، اس میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میری کیا کریں، میری بولو کیا کریں، حمد کریں، ستائش کریں. خدا کا یہی مقصد ہے انسان کو بنانے کا. وہ کہتا ہے کہ جب تم بندگی کرو گے، حمد کرو گے، ستائش کرو گے، عبادت کرو گے تو تمہارے روٹی اور پانی میں برکت دینے والا ہوں. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا یہ کام ہے کہ تم میری عبادت کرو، پورے دل، پوری جان اور پوری طاقت سے مجھے پیار کرو. بس ہمارا کام بھی یہی ہے. یسوع مسیح نے بھی فرمایا، سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو پورے دل، پوری جان، پوری طاقت اور پوری عقل سے اپنے خدا کو پیار کر، کیونکہ تیرا خدا تجھے بنانے سے پہلے جانتا ہے کہ تمہاری کون کون سی ضرورتیں ہیں. آمین. تو ہم نے اپنے آپ کو مسیح میں زندہ کرنا ہے، کیونکہ ہمارا یسوع مسیح بھی زندہ
तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो जिंदा तो कलीसिया भी जिंदा होनी चाहिए। इस बात को नोट करें और अपने आप को खुदा यीशु मसीह के मकसद को पूरा करने के लिए पेश करें। अगर वो मकसद पूरा ना हुआ तो याद रखें, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। आइए मेरे साथ मत्ती की इंजील में चले, यूहन्ना इस्तबारी की मार्फत मत्ती की इंजील 3 बाब और उसकी वर्स नंबर 12 इस बात को नोट करें, इस बात को आज लेकर जाएं कि हम किसी मकसद के लिए दुनिया में जीते हैं। और जीना किसके लिए? जिंदा रहना मेरे लिए नफा है ना, और सॉरी, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। तो मसीह के लिए जीना है ताकि मरने के बाद हमें क्या मिल जाए? नफा मिले। यह अलग टॉपिक है, लेकिन जो बात मैं अब तक पहुंचाना चाहता हूं, कहीं हमारा हाल जो है वो उस आग में या उस भूसी की तरह या उस क्या उसको मैं बोल सकता हूं, वो जो पंजाबी से बोल रहे तूड़ी या कूड़ा करकट हमारी बदहाली ना हो जाए। अगर हमने मकसद को पूरा ना किया तो ये हाल हमारे साथ हो सकता है। 12वीं आयत को पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील 3 बाब 12वीं आयत। कलाम में लिखा है, उसका छाज उसके हाथ में है, उसका छाज उसके हाथ में है, यानी उसको इख्तियार है। आसमान और जमीन का कोई इख्तियार यीशु मसीह के पास है। और बाप भी कहता है कि मैंने अदालत का सारा इख्तियार किसको दे दिया? अपने बेटे को। जो बेटे की नहीं मानता, जो बेटे की नहीं सुनता, जो बेटे पर ईमान नहीं लाता, हमेशा की जिंदगी उसकी नहीं है। जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। तो यीशु मसीह को अदालत करने का, इंसाफ करने का, जजमेंट करने का इख्तियार दिया गया है। उसका चार्ज उसके हाथ में है। चार्ज का पता किसी को? जो यहां पे पुरानी माए बहनें बैठी हुई है ना, जो पुराने दौर की, नवियां तो नहीं पता कोई भी नवियां वो की होता है, ठीक है ना। नवियां छानने का ही पता है, क्योंकि इन्होंने को आजकल तो पिच भी नहीं लेंदी। पिच भी कितने चलाते हैं? छानने च, है ना। सो चार्ज जो पंजाबी में तीला का बने होगा, कितना बने होगा? तीला का। सो उसके अंदर खुदा ने चार्ज के अंदर और हाथों में क्वालिटी खुदा ने रखी है कि जब वो हमारी माए बहनें उसको छाटती थी दोनों तरफ से, तो पटाखा बजता सी। पटाखा एक पास की बजता ना सी, कभी पटाखा बजता किन्ने किन्ने वेख्या है? किन्ने किन्ने पटाखा बजाया है? अब बजाया किसे बजाया है? एक हाथ हो गए पटाखा। वो बड़ा मजा साज होंदा सी, विच दाने आंदे करने तो बाकी नाल पटाखा एक हाथ ना बजना। तो जनाब जेडे चंगे चंगे दाने होंदे सन ना, वो पिछे रह जांदे हन, ते जेडे भैड़े दाने होंदे सन वो अगे। वो पटाखे का कमाल सी, है गल कि नहीं? ते बड़ी छेती कई दा पटाखा बजने वाला है। ऐ मेरी गल नोट कर लो तुसीं। ते ऐसा पटाखा बजना है तो उथों छुटना नहीं। नो, सो उसका हाथ और सॉरी उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा। खलियान जो है यह खेत को कहा गया है, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खेत जो है वो पूरी दुनिया को कहा गया है। पूरी दुनिया के कबाइल, उम्मतें, कौमें जितनी भी इस दुनिया में पाई जाती हैं, उन सब के बारे में कहा गया है कि वो अपने खलियान को इंसाफ के तराजू से, इंसाफ के चार्ज से
वो साफ करेगा। और यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की, अगर आपने ये पढ़ी हो तो 3 अंजीलों में, मत्ती में, मरकस में और लूका में, उसने कहा कि किसी ने खेत में बीज बोया। जैसा बातें गौर से सुनने वाली हैं, किसी ने खेत में बीज बोया और वो थोड़ा सा उगा और दुश्मन रात को आया और वो कड़वे दाने फेंक कर चला गया। अब जिन्होंने वो फसल पे काम किया था उन्होंने कहा कि मालिक ये क्या हुआ, हमने तो अच्छा बीज बोया था, ये कड़वे दाने कहां से आ गए, अब हम क्या करें। मालिक ने कहा तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि इन दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। ये कड़वे दाने और अच्छे दाने गुनाहगार और रास्तबाज की मिसाल है। अब रास्तबाज भी बढ़ रहे हैं और गुनाहगार भी बढ़ रहे, दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। जब फसल की कटाई का वक्त आएगा तो फिर आगे पता है यीशु मसीह ने क्या कहा है, वहां पे लिखा है वो अपने फरिश्तों को भेजेगा और अपने लोगों को दुनिया के चारों कोनों से इकट्ठा कर लेगा। क्या कर लेगा? इकट्ठा कर लेगा। और जो कड़वे दाने हैं, कड़वी फसल है, जो शरीर है, जो अहमक है, जो बेवकूफ है, जो जाल है, जो मुर्दा है, जिनके अंदर अभी भी मुर्दापन पाया जाता है, फिर उनके लिए वही सजा होगी जो इस आयत के एंड पे लिखी हुई है। क्योंकि उसने अपने फरिश्तों को भेजकर अच्छे दानों को कहां पे जमा करता है, वो अपने कल्याण को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो कहां जमा करेगा? खत्ते में। कहां भाई? खत्ते में। और खत्ते का जो लफ्ज है ये आसमान की बादशाही की नुमाइंदगी करता है कि वो अपने लोगों को आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए उनसे क्या करेगा? अलग कर लेगा। तो बाकी को क्या करेगा? मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। जरा सोचे, वो शख्स, वो बेटा, बेटी, बूढ़ा, जवान, बच्चा, मर्दो, जन, खवातीनो, हज़रात, जो घराने, जो कौमें, उम्मतें, अगर यीशु मसीह के तराजू के पलड़े में पूरी ना उतरी तो उनका हाल क्या होगा? कैसे बचत होगी? यह कोई बढ़ाने धमकाने वाला मैसेज नहीं है। बहुत सारा लोग कहते हैं कि पादरी लोगों की कर रहे ने, डरा रहे ने। असि नहीं डरा रहे, थानू खुद करना चाहिए। अगर साडी हालत ठीक ना हुई तो वाकई फिर अगले सानू सड़ने पैना है। हम तो तालीम देते हैं, हम तो कहते हैं कि भाई तौबा कर लो क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। क्योंकि ऊपर सारी तौबा का जिक्र है इसके हवाले के अंदर। बहुत सारे बगिया, बहुत सारे फरीसी वो निकल आए पानी का बपतिस्मा लेने के लिए। मेरी बात समझ है ना? तो उसने कहा ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया कि आने वाले गजब से भागो, बचो। तो क्या आज यहां जितने बैठे हुए हैं उनको पानी के बपतिस्मे की जरूरत नहीं है? मैं एक दिन इधर कलाम शायद सुनाए, मैं ना तो बड़ा डरते ने मुझे पानी को गर्मी आ गई है ना जनाब, इन्होंने बड़ा ही पानी बिला वजह जाया करना, कोई काम भी नहीं है। कोई कपड़ा सने ना आ रहा है, कोई कपड़े ला के ना आ रहा है, कोई अंदर ना आ रहा है, कोई बाहर ना आ रहा है ना। पर जिथे असल नहाना चाहिए उथे नहीं नहाना ना। उस पानी का उन्होंने की लगता है, की लगता है? वो उंज डर लगता है जिन्हों को बेवकूफ बंदा जड़ा वो सर्दी दे पहला मग्गा पा लो ठंडाई, है ना। जो सर्दी बंदा ठंडा पानी पा ले उत्ते तो फिर दस कौन के नहीं है। हार्ट अटैक लोगों को हो जाते हैं, याद रखे। क्योंकि जो ठंडा पानी पवे तो हौका बंदे का हौका निकलता है, तो यकीन करो लोग मर जाते हैं।
ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਐਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੱਗੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਦੇ ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ, ਹੈਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਤੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਆ, ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀ, ਯਿਸੂ ने आ जाना है। तो वेख जमाना, मेरी बात अंडरस्टैंड करे, बाइबल को अंडरस्टैंड करे। हम भूसी में चलने वाले ना बन जाए। गल मेरी याद रखो, एक टैक्नीकल गल है। अग लगी होवे ते बुझदी किदे नाल है? क्यों जी? बोलो बोलो, सारे बोलो, किदे नाल? ते जिहड़ी गुनाह दी अग लगी है, कुड़ियां मुंडियां जवान वडेरे, तो मैं दस नहीं सकता ऐसी स्टोरियां। ये बुझदी किदे नाल है? ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ? ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ, 5 ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈ, ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਖਿਸਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ बैठा हुआ तो पानी पीला मेरे को, ताकि तेरी आग की करे बुझ जाए। आज जो गुनाह की आग भड़की हुई है, हमारी पूरी बॉडी में गुनाह पाया जाता है। इस बॉडी को पाक और साफ करने के लिए लाजिम और वाजिब है कि पानी से पैदा हो जाए, तौबा की जाए, माफी मांगी जाए और वापसी का रास्ता इख्तियार किया जाए और भूसी ना बने, हम कल्याण के खूबसूरत दाने बने। और बाइबल मुकद्दस इसको एक और नाम देती है। मेरे साथ जरा मत्ती रसूल की अंजील में रहे 25वां बाब और उसकी आई थिंक 33वीं आयत है। अंडरस्टैंड करें बाइबल को और नहाने की तैयारी करें, अपनी आग को बुझाने की तैयारी करें, ताकि आप इस दुनिया की आग से जो गुनाह किया ऐसे भी पढ़ सके और वो आखिरी जो अदालत में से अगर बरी ना हुए गुनाह वाली जो आ गए यहां भी आगे भी, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। उससे भी बचे, उससे भी बचे, उससे भी बचे। बचना बहुत ही जरूरी है। आमीन। क्या लिखा खुदा के कलाम में? जी 33वीं आयत, मेरे साथ रहिए खुदा कलाम को। बाकी मैं 31वीं आयत से पढ़ता हूं। लिखा जब इब्न आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से क्या करेगा? आपको पता है यीशु मसीह ने कहा 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? एक रास्तबाज और एक भूसी। फिर क्या लिखा है? फिर क्या लिखा है? 2 आदमी चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक। और इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो मुकाशफ है, ये मर्द और औरत की बात है, हस्बैंड और वाइफ की। अगर उसमें से हस्बैंड नेक हुआ तो वो जाएगा, अगर औरत नेक हुई तो वो जाएगी। फिर ढूंढना, खेत नाच चलाते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। सब कौमें उसके सामने। क्या उन कौमों में मैं और आप नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? कि नहीं? हम तो पहले होंगे, क्योंकि लाडले है ना। बातें बहुत हैं जो मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन थोड़े वक्त में सीख के फिर वाइंड अप करते हैं। सब कौमें उसके सामने जमा की जाए
वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से। वहां पे भूसी है और खलिहान है, यहां पे क्या है? भेड़ और बकरी है। ये ना गौर करें, वहां पे आप खलिहान है तो भूसी है। इस आयत के मुताबिक आप भेड़ है या बकरी है? अगर भेड़ है तो क्या हमारे अंदर वो क्वालिटी, वो खसूसियात पाई जाती है जो यूहन्ना की इंजील 10वें बाब में यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है, मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती है, वो किसी गैर की आवाज नहीं सुनती। कैसी क्वालिटीज हमारे अंदर है? नहीं है तो फिर हम क्या हुए? बकरी। और बकरी कहा जाता है इसकी जो बैकग्राउंड है कि ये नाटी होती है, नाटी समझते हैं ना, शरारती होती है, शरारतें करती है। सो भेड़ों को बकरियों से क्या कर देगा? जुदा। और फिर देखे और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं। फर्क देख ले, फर्क। खलिहान अच्छी जगह पे, घ्यो अपनी जगह पे, अच्छे दाने अच्छी जगह पे, और भूसी आग में। हम क्या है? हम घ्यो है या भूसी है? हम भेड़ है या बकरी है? हम शरीर हैं या रास्तबाज हैं? हम गुनाहगार हैं या खुदा के बंदे और बंदियां हैं? हम क्या हैं? हम राइट हैंड पे होंगे या हम लेफ्ट हैंड पे होंगे? कैसे उधरोगे? आदमी नहीं कही यार फलां बंदा तो मेरा राइट हैंड है, फलां बंदा तो मेरा राइट हैंड है। जैसे मैं भी कहता था कि पास्टर सैमी मेरे राइट हैंड है, वो मेरा बड़ा ख्याल रखते, बड़ा हम वर्क करते। सो राइट हैंड वाले लोगों की क्वालिटी से बड़ी है। अब राइट पे खड़े होना है यार, तो राइट पे खड़ा होने के लिए राइट पाथ पे चलना पड़ेगा। राइट पाथ समझते हैं ना? सीधा रास्ता। इंसान को बहुत सारी राहें ऐसी हैं जो सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में क्या है? मौत है, मौत। शायद हम अपने दिमाग से, अपने अक्ल की सलाह से, अपने दिल की सलाह से हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक हम जिंदगी बसर नहीं कर रहे, तो फिर तबाही है, बर्बादी है। कोई नहीं बचा सकेगा, बचने की उम्मीद नहीं है। आज उम्मीद है, आज वक्त है, आज हमारे पास मौका है कि हम अपने आप को मसीह की बादशाही के लिए तैयार कर सकते हैं। हम भूसी न बने, बल्कि हम घ्यो का दाना बने, ताकि हमें अच्छी जगह में संभाला जाए। आमीन। एक हवाला पढ़ते हैं, मलाकी की किताब उसका 4था भाग, तो उसकी पहली आए। कोई मेरी पढ़ने में रहनुमाई कर दे प्लीज। बस इसके बाद वाइंड अप करते हैं। और समझदार के लिए, है ना, समझदार के लिए साइनी काफी है, क्योंकि इशारा बोलेंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन चलो बोला भी वैसे गया है, इट्स ओके। हाँ जी, समझदार के लिए इशारा तो नहीं, बातें काफी होती है। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले मेरी बहनों भाइयों, प्लीज जी। कोई पढ़ने में रहनुमाई करेगा? मलाकी बाइबल मुकद्दस के पुराना अहदनामा की आखिरी किताब 4था बाब पहली आयत मैं पढ़ता हूं, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो। क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानिंद सुजान होगा, तब सब मगरूर। जरा क्वालिटी देख लो। हाँ भाई, सिफतां सुन लो, भूसी दियां ते बकरी दियां ते खब्बे हत्थ वालियां दियां। किदी किदी? भूसी दी, बकरी दी ते खब्बे हत्थ वाले दी क्वालिटी सुन लो। बड़िया सोहनिया क्वालिटियां ने, खुदा करे सारे च पाइया जान। अगर सुन लो ये चंगियां ने कि नहीं। देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानिंद सुजान होगा, तब सब मगरूर और बदकरदार भूसा की मानिंद होंगे।
किसकी मानद होंगे? भूसे की मानद होंगे। और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखों बुन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल फाज फरमाता है। कौन फरमाता है? तो गिनती 23 की 19 में क्या लिखा है? अगर आपको याद हो तो, खुदा इंसान ने के झूठ बोले ना, वो आदमजाद है कि अपना, क्या वो झूठ बोल रहा है यहां पे? वो कहता है कि सब बदकरदार, सब मगरूर, सब घमंडी, सब नाशुक्रे, सब माँ बाप के नाफरमान, सब बिदत रखने वाले, हसद करने वाले, झगड़ा करने वाले, अबजोइयां करने वाले, रियाकारियां, मकारियां, फरेबकारियां करने वाले, वो सारे आग में चले गए। वो दिन सजान होगा, सोग का दिन होगा, मातम का दिन होगा, जब वो कहेगा लेफ्ट हैंड वालों से, ऐ मलाउनो बदकारों मेरी आंखों के सामने से। मैंने बड़ा डर लगता है स्पीकरे तो, खुदा स्पीकरे तो बचावे साधो। ऐ मलाउनो बदकारों मेरी अखा को पढ़ो जो मैं तुहाडियां शक्लां वेखना भी, मैं तुहानू एडी सोहनी शक्ल देती पर इस शक्ल में चंद की चाड़ के आए हो, की करके आए हो तुसी, है ना? खुदा ने सानू कितना सोहना बनाया साहब नू। अगर साडे बदना तो मसीह का जलाल ज़ाहिर नहीं हो रहा तो जलाल तो असीं किसी का होर ज़ाहिर करना पे, है ना? जब मसीह का नहीं हो रहा तो उन्हें साडी शक्ल देखनी है। उसने कहना मेरे बाप ने अपनी शबीह पर तुम्हें बनाया, पर तुम्हारे अंदर कोई और समाया और तुमने गुनाह कमाया, और गुनाह ने तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दी। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। इन्होंने उत्थे सुटो जिथे अखां दा रोना ते दंदां दा पीसना है। पर सज्जे पासे वाले ने क्या ही गल है? ठीक है गल कि नहीं? ऐ मेरे बाप के मुबारक लोग, ऐ जे खलियान ते घ्यो ते पेड़ ते सज्जे हथ वाले, यकीन करो डर लगता जो आखिरत का कलाम सुनाईदा है। पता नहीं अगले नूं लगन दिया कि नहीं लगता, पर मैनू बड़ा डर लगता है ना? हुणे दुआ मुकनी है, हस उस के असा टोट चढ़ना है, खुदा ठट्ठे च असा की करना है, उड़ा चढ़ना वे। ऐस कलाम दा यीशु ने कहा अच्छा बीज होवे जिहड़ा किते बोया गया है ज़रख़ेज़ ज़मीन च 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आवे। आमीन। हम तौबा करके वापस आए। तौबा करोगे कि आसमान की बादशाही, हम आसमान की बादशाही के मुसाफिर है मेरी बहनों भाइयों, कि दुनिया के मुसाफिर है नहीं, हम यहाँ के नहीं है। हमारी लाइफ बहुत कुछ शॉर्ट है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है लाइफ का, वो मैं शायद सुना भी चुका हूं। लेकिन आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि हम खलियान के खूबसूरत दाने बन जाएं। मौका है हमारे पास, वक्त है हमारे पास, और हम अपने आप को पानी और रूह से तैयार करके उस कलीसिया, उस दुल्हन की मानद बन जाए जिसके बारे में फिक्र लिखा हुआ मुकशफा आखिरी बाब में। रूह भी कहती है आ और दुल्हन भी कहती है आ। तो फिर खुदा का बंदा पलूस इब्रानी खत में क्या कहता है? आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। आमीन। अपने सर को जगह को बंद कीजिए। और कितने हैं जो इस मैसेज को सुन के तैयार हो सकते हैं कि मुझे अब उस हालत में नहीं रहना, जहालत में नहीं रहना, मैंने हक को नाराजगी से नहीं दबाना। वो खड़ा होकर इकरार कर सकता है। मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूं। बड़े दिनों के बाद ये बात मेरे दिल में आई है, दिल में आई है। अब हम ये छोड़ दिया हमने, ये आखिरी बात, लेकिन आज मेरे दिल में एक बोझ से ये बात आई है कि अगर आप इकरार करना चाहते हैं, अगर आप पानी और रूह से पैदा होना चाहते हैं, अगर आप मसीह की भेड़ बनना चाहते हैं, अगर आप मसीह की बेटी बेटा बनना चाहते हैं, आप उसकी बादशाही में जाना चाहते हैं, आप भूसी नहीं, आप बकरी नहीं, आप लेफ्ट हैंडेड नहीं, बल्कि आप राइट हैंड पे खड़ा होना चाहते हैं, आप उसके साथ रहना चाहते हैं, तो फिर वक्त को गनीमत जानिए क्योंकि दिन बड़े बुरे हैं। दुआ में लग जाइए, दुआ में लग जाइए। अपने आप को पेश कर दीजिए यीशु मसीह को। अपने आप को मेरी बहनों भाइयों जितने खड़े हैं पेश कर दीजिए। वक्त आपके पास है, यह वक्त दोबारा नहीं आएगा,
या जिंदगी दोबारा नहीं आएगी, आज का दिन दोबारा नहीं आएगा, आज का ये इकरारनामा दोबारा आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आज का दिन गुजर गया, कल कुछ और दिन होगा। आपकी आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज आनी चाहिए। आवाज बहुत कम है मेरी बहनों, भाइयों, जितने खड़े हो। अपने आप को पेश करें और तैयार कर ले, फैसला आपके हाथ में है। बाइबल मुकद्दस ने, खुदा के कलाम ने मुझे और आपको सब कुछ सिखा दिया है, फैसला हमारा है। हमने क्या करना है, हम किस तरफ को जाए। मसीह के पीछे जाए तो जिंदगी है, इब्लीस के पीछे जाए तो हमेशा की मौत है, वहां पे छुटकारा नहीं होगा। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरी आवाज के लिए, तेरे कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। ऐ खुदा, अपने कलाम अक़दस की रोशनी में हम सबको चलने का फजल दे। ऐ खुदा, जितने लोग कन्फेस के तौर पर, इकरार के तौर पर तेरी हज़ूरी में खड़े हुए हैं, ऐ खुदा, इनको अपने बेटे की बादशाही की पहचान देकर उसकी बादशाही के लिए तैयार कर। खुदा, ये पक्ष है, ये पक्ष है, ये खलियान के खूबसूरत दाने जो घ्यो की मानंद है और खूबसूरत जगह में जमा किए जाते हैं, ये ऐसे ईमानदार बन जाए। पानी और रूह से पैदा होने का फजल दे, तौबा करने का फजल दे, वापस आने का फजल दे, ताकि ये तेरी बादशाही से रहे हुए मालूम ना हो। ऐ खुदा, मैं सबको बरकत सलामती की दुआ देता हूं और चाहता हूं कि खुदा, ये जितनी जाने खड़ी है, सड़ चुकाए हैं, तेरी बादशाही के लिए तैयार हो जाए और मुकम्मल तौर पर तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसको अपना शख्सी निजात देना कबूल कर। खुदा, जमीन पर सौ गुना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी पाए, यीशु मसीह के बाबर के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू।